ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। 1908 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਧੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭੈਣੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। 1908 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਜਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ 1917 ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤ ਕਾਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਮੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਮੁਹਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਮਨ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਜੋਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਪਰੋਏ ਹੋਣ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਥੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
सरकारां ने खुली छुट्टी दी है। वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांसनैशनल कॉरपोरेशनां ਹਨ, ਵੱਡੇ कॉरपोरेट ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुली छुट्टी है कि वो रेहां स्प्रेहां बीजां डीजल हर चीज़ की कीमत बेखौफ बिना किसी रेगुलेशन दे तय करन। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ सिर्फ चुपचाप उन्हां कीमतां ते खरीदन ते बेवस है। वो एक चीज़ां खरीद नहीं पांदा, वो होर कर्जे दे वस जांदा है, ओदियां होर ज़मीनां गहने तरियां जांदियां ने, सूदखोरां दी पकड़ उन्हां दे उत्ते होर गहरी होंदी है। असीं देख रहे हैं कि खेती संकट ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ छोटी किसानी है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ खेत मजदूर ने उन्हां नूं नपीड़ रहा है। पर ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि सारे लोगों के उत्ते इस तरह की मार पै रही है। एक वर्ग ऐसा भी पैदा हो रहा है, भावें वो छोटा वर्ग है, जिहड़ा इस संकट का लाहा उठा रहा है। ਉਹ ਲੋਕ ने ਜਿਹੜੇ सूद ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ना सिर्फ वो अपनी पूंजी नूं दुगनी तिगनी कर रहे ने, वो जेड़े साडियां पंचायती जमीनां ने, साडे सांझे जेड़े सोमे ने, अपनी सियासी आर्थिक भुगत वरत के उन्हां दे उत्ते भी कब्जा कर रहे ने। असीं अज देखदे हां थां ते पिंडां दे विच इह गल हो रही है कि जेड़ियां साडियां सांझियां जमीनां सन ओ सारियां हथियाईयां जा चुकियां ने, वो दबियां जा चुकियां ने, वो एक्वायर कर लितियां गईयां ने वड्डियां वालों। साडे छोटे बंदियां दे कोल अपनियां रूड़ियां लान दी थां नहीं, अपने पशुआं दा चारा वड्डन दी थां नहीं, वो बेबस हो रहे ने। ते औरतां इस सारे संकट दे विच कित्थे खड़ियां ने? भैणों, तुहानू ये जान के मैं ਜਿਹੜੀ गल तो शुरू करना चाहती हाँ कि आर्थिक तंगियां दे विच, खेती संकट दे विच पंजाब दियां ते हिंदुस्तान दियां औरतां किवें जुड़ियां होईयां ने, उन्हां नाल की बीत रही है। तुसी जानदियां हो कि हरी क्रांति आण दे नाल औरतां दी किरत ਜਿਹੜੀ सी ਉਹ मशीनां दे नाल उन्हां तो बाहर हो गई, औरतां खेती तो बाहर हो गईयां। पर औरतां कित्थे गईयां? किसे सरकार ने उन्हां दी सार नहीं लई। पंजाब सरकार ने 2005 दे विच खेती कमिशन बिठाया। वो कमिशन सी किसान मजदूर कमिशन, जिहदा काम सी कि जिहड़ी पंजाब दे अंदर खेती संकट है उन्होंने समझिया जाए, उहदे अंकड़े इकट्ठे किए जान। उस कमिशन ने 10 तो ज्यादा रिपोर्टां कढ़ियां। कमिशन ने स्टडियां कीतियां, रिसर्च की। कमिशन ने यह दसिया कि खेती छड्ड के जा रहे किसान की कर रहे ने, किसानां ते किन्ना कर्जा है, छोटे किसानां नाल की हो रहा है, वड्डे किन्ने होर वड्डे होंदे जा रहे। 10 रिपोर्टां कढ़ियां। एक भी रिपोर्ट दे विच एक भी थां, एक भी पैरा ते की एक भी लाइन औरत दे बारे नहीं है। उन्हां रिपोर्टां ने चुप साधी रखी कि औरत किसानां नाल की हो रहा है, औरत खेत मजदूरां दे नाल की हो रहा है, वो किस तरह अपना गुजारा कर रही ने, वो केड़े कित्तियां विच जुड़ियां ने जां केड़े कित्तियां तो वांझियां हो गईयां ने। उन्हां बारे कैसी पॉलिसी बननी चाहिए है कि वो भी अपनी किरत जिहड़ी है उसारी दे विच पंजाब दी, पहले अपने परिवार दी, फिर अपने पिंड दी, फिर अपने देश दी उसारी दे विच हिस्सा पा सकन। सरकारां दी नीति वो नीत नहीं, वो बदनीत सी। उन्होंने औरतां नूं अपनियां नीतियां चों माइनस कर दिता। शर्म की गल है कि साडे बहुत माने जाने जेड़े अर्थशास्त्री है जिन्हां ने ये रिपोर्टां लिखियां, उन्हां भी औरतां नहीं दसियां, उन्हां दे अखां ते भी पट्टियां सी। ये ते जदों सिर्फ कुछ औरतां साडे वर्गियां ने उन्हां दी जिहड़ी किसान कमिशन सी ओदी खुल के सरेआम
पंडी करनी शुरू की कि औरतां कित्थे ने तुहाडी रिसर्च विच, ते उन्होंने छोटियां मोटियां 2-4 स्टडियां करा दित्तियां। पर साडी हाली भी जिहड़ी सरकार दियां नीतियां ने, औरत उन्हां विचों गायब है। पर तुसी औरतां अपने वास्ते आप बोलियां, तुसी अपना बुलारा आप बनियां, तुसी जथेबंद होइयां, तुसी कोलां दे विच गईयां, तुसी उन्हां सारे कोलां दे विच शामिल होइयां जिन्हां दी आर्थिक नीतियां करके जिन्हां दी मार तुहाडे पिंडियां ते भी पै रही सी। ते फिर महान किसान अंदोलन आरंभिया ते तुसी वड्डी गिनती विच ऑलमोस्ट 50% की गिनती दे विच उस अंदोलन दे विच शामिल होइयां। तुसी डट के उत्थे बैठियां। तुहाडी बसंती चुनियां दे हड़ आ गए जदों किसान अंदोलन विच तुसी शामिल होइयां। तुसी तुहाडी शामिल होण दे नाल किसान अंदोलन दी सरकार दे वल जिहड़ी जवाबदेही सी वो बहुत विस्तारी गई। तुसी जदों उत्थे पहुंचियां, मैनू याद है उस दिन तुहाडे किसान अंदोलन शुरू होने दे ठीक 2 महीने बाद साडियां औरतां बीबी गुलाब कौर स्टेज ते पहुंचियां। उन्हां दे हत्थां दे विच फोटो फ्रेम सन अपने प्यारियां दे जिहड़े खुदकशियां कर गए सन खेती संकट दी मार ना सहंदे होए। कई भैणां दे हत्थ विच 2-2 फ्रेम सन ते उस पंडाल दे विचों जदों तुसी ओ फ्रेम उत्ते कीते ते इस तरह लग्या सी ओ सारे मुल्क ने की सारी दुनिया ने वेख्या सी कि खुदकशियां दा हड़ आ गया सी। तुसी उत्थे पहुंच के सारियां नू इस गल बारे जाणू कराया कि ए है खेती संकट दी मूरत, ए है खेती संकट जेड़ा औरतां अपने पिंडियां ते हंडा रहीआं ने। मर्द ते चले गए, तुसी उस स्टेजा तो दस्या। ओ जेड़ियां तंदां तोड़ के चले गए सन, तुसी दस्या कि किवें तुसी ओ धागे चुने, उन्होंने फिर जोड़न की कोशिश की। बच्चों नू पालना, सरकार दे नाल मत्था लगाना कि कॉम्पनसेशन मिले, जड़ियां गहने पईयां जमीनां ने उन्होंने छुड़वाना, ये सारियां जिम्मेदारियां तुहाडे ते आण पईयां। बहुत सारियां भैणां ने दस्या कि उन्हां दे सौहरे परिवार भी उन्हां दा साथ छड्ड गए। वो किवें निहत्थियां हो गईयां क्योंकि आदमी स्पिरिटा पी के खत्म हो गए ते उन्होंने छड्ड गए उस संकट का सामना करने वास्ते। भैणों तुसी उत्थे पहुंचियां ते तुसी दस्या कि किस तरह तुसी खेतां दे विच काम करदियां हो, पर उजरत दे नां ते 3/4 मिलदी है। तुहाडे कोल जमीनां नहीं, जमीनां दी थुड़ तुहानू मार रही है। मैं तुहानू दसना चाहती हाँ कि अज साडे कोल जिहड़े अंकड़े ने वो दसते ने कि पंजाब दे अंदर जेड़ा खेती दी जमीन है उदा वितकरा हिंदुस्तान दे विच सब तो ज्यादा है। हिंदुस्तान दे 3-4 सूबे ने जिन्हां दे विच जेड़ा वड्डियां जमीनां वाले ते छोटियां जमीनां वाल दा पाड़ा जेड़ा है वो बहुत वड्डा है। पंजाब ओदे विचों नंबर 1 है। पंजाब है, केरला है, तेलंगाना है ते आंध्र प्रदेश है, जिदे विच जमीन दी कहानी वंड है। एक यह वर्तारा है। तुसी जो मेहनत करन वाले लोग, छोटी किसानी वाले लोग, जेड़े हमेशा मिट्टी नाल मिट्टी हो के मेहनत करके इन्ना अनाज उगांदे ने कि पूरे दे पूरे देश दे भंडार भरे रहन, एक ऐसे वितकरे वाले सूबे दे विच रहंदे हो जिथे दा अमीर ते जमीन, वड्डी जमीन वाले ते छोटी जमीन वाले दा पाड़ा हिंदुस्तान विच सब तो ज्यादा है। तुसी सब तो संगठित हो, तुहाडियां यूनियनां, तुहाडियां जथेबंदियां अज हिंदुस्तान दे विच जानियां जांदियां हन, पर ये जथेबंदियां भी हाली तक जमीन दी कहानी वंड दा मसला नहीं चुक सकियां। ते हुण अज जदों ये विशाल किसान मजदूर सम्मेलन हो रहा है खेती संकट दे हल नू लभण लई, ते भैणों
ये वक्त है अहद करन दा, ये वक्त है साडी पुरानी जेड़ी विरासत है स्त्री मुक्ति दिवस दी, ओनू अगे लैके जाण दा कि असी इस समाज दे विचों वितकरे खत्म करने ने, असी जमीन दी काणी वंड खत्म करनी है, असी मंग करनी है कि ओ जमीनां जड़ियां वड्डे लोकां ने दब रखियां ने उन्हां नू खोलिया जाए, उन्हां नू लोकां दे विच वंडिया जावे ताकि इहो जे काम किते जुड़न जिन्हां दे विच भैणां भी साथ देन, जिन्हां दे विच भैणां दी भी शमूलियत होए ताकि वो भी गिणियां जान एक बराबर दा आर्थिक मनुख दी तरफ भी। मैं दसना चाहती हाँ कि जदों औरतां किरत मंडी दे विचों गायब हो गईयां, जदों उन्हां दे नां दे अगे लिखिया गया औरतां कोई काम नहीं करदियां, और जदों मरदमशुमारी हुई कॉलम बनाए गए केड़े केड़े किते कौन कौन कर रहा है ते औरतां दे कॉलम दे विच काटा फेरिया गया, औरतां कुछ नहीं करदियां। औरतां दी किरत मंडी दे विच जदों नागा पै गया ते औरतां दी समाजिक हैसियत भी निगुणी हो गई, उन्हां दी कोई पुछ ना रही। ओ औरतां जेकर अपनी कमाई नहीं कर सकदियां, जिन्हां दे कोल कोई संसाधन नहीं, किसी किस्म दा कमांड दा कोई भी तरीका नहीं, उन्हां दी कोई पहचान नहीं होंदी, इसे करके असी देखते हैं कि औरतां दे उत्ते तशद्दद वधदा है, उन्हां दी किसी भी थां ते जाके कीमत अपनी निगोशिएट करन दी ताकत कटदी है, उन्हां नू कोई भी दबांदा है। मैं बहुत थां ते जाके जदों औरतां नू पुछदियां क्यों एडी माड़ी उजरत ते काम करदियां ने, क्यों उन्हां नू मनरेगा दा पूरा पैसा नहीं मिलता, क्यों उस स्कूलों दे विच छोटे छोटे काम करके मास्टरां दी चाह बना के 300 रुपए वाले काम करदियां ने, क्योंकि उन्हां दे कोल किसी किस्म की ताकत नहीं कि वो जाके ये कह सकन कि सानू भी बराबरी की तनख्वाह चाहिए है। वो तां ही मिलती है जदों औरतां जथेबंद होण, जदों औरतां इकट्ठियां होण, जदों झंडियां दे थल्ले जमा होण ते तुसी होइयां हो। तुसी एक बारी पूरे हिंदुस्तान नू ये दस दिता कि जेड़ी औरत है, पेंडू औरत किन्नी जागृत है। बहुत सारे लोग आज पत्रकार है पूछ रहे सन कि औरतां किन्नियां जागरूक होइयां किसान अंदोलन तो। मैं कहंदी हां भैणो तुसी जागरूक कीता किसान अंदोलन नू, अपने झंडियां दे थल्ले जदों तुसी इकट्ठे होए तुसी दस्या लोकां नू। बाहर जांदियां मैं किधरे भी बोलदी हाँ ते लोग मैनू पुछदे ने होर दसो पंजाब दीयां औरतां बारे, होर दसो वो किवें इन्नी गिनती दे विच जनतक पिड़ां विच आ जांदियां हन, वो किवें इन्नी हज़ारां दी गिनती विच इकट्ठियां होके बैठ जांदियां हन, उन्हां दे बारे होर दसो। तुसी ते मेरियो भैणो नवीआं पिरतां पा दित्तियां हन, तुसी जथेबंद हो के हिंदुस्तान दी सारी जनता नू ये दस दिता है कि जथेबंदियां दे विच किन्नी ताकत है। ये असी जानते हाँ कि जिवें जिवें लोग जुड़ते ने उन्हां दी ताकत वधदी है। तुहाडा जमाती एका, तुहाडी भाईचारक सांझ, भावें ओ सांझ तुसी बनाई मलेरकोटला दे विच जाके मुसलमान किसानां दे नाल, उन्हां मुसलमान गरीबां दे नाल जिन्हां दी नागरिकता खोही जा रही सी, भावें ओ बंदियां दा कैदियां दा मसला होवे, तुसी इस जथेबंदी वालों हमेशा आवाज उठाई एके दी, क्योंकि तुसी जानिया, तुहाडी जथेबंदी ने जानिया कि तुहाडी मुक्ति दी तंद बाकी दियां लोकां दे जूझ दे लोकां दियां मुक्ति दी तणियां दे नाल जुड़ी हुई है। तुसी ओनू लभन दी कोशिश करदे हो, तुसी ओनू फड़न दी कोशिश करदे हो। ओदा सब तो बड़ा उदाहरण हुणे हुणे जेड़ी सिख कैदियां नू लैके होई मंग दी गल है, जिदे विच तुसी ये जोड़िया कि सिख कैदी भी रिहा होण पर हिंदुस्तान दियां जेलां दे विच सड़ रहे वड्डी गिनती दे विच मुसलमान, आदिवासी, दलित सब आजाद होण।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਜਿਹੜੀ ਵੀ % ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 58% ਨਾਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 85% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85% ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਹਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਕਾਨ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤੀ ਏਕਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ